हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स और स्केड्यूल। तो आप सभी का स्वागत है भारत इन्फो चैनल पे। मैं नीतीश कुमार झा और आप सभी को बताऊंगा आज जो मैंने बताया कि आर्टिकल्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। So definitely, if you do on the daily basis some works, definitely it impact in your future. So basically, the things you have to do, just make your present daily routine, prepare your daily routine so that you will be the best in your future. So that's the motivational quotes. We are going ahead. So if you like this video, definitely like, share and subscribe my channel. So first part, union and its territory. Talk about the union and its territory. So there is a basic thing which come every in every competitive exams, and also it's a basic information. It's a fundamental information. So we also have to read this. Okay. So article are the guidance given in the Constitution of India. There are currently 448 articles in the Constitution of India. Following are some important articles of the Indian Constitution where we will talk about. So thoroughly we are going to discuss now. First part talk about the union and its territory. Article in Constitution 124 1 to 4, 5 to 11. Here not 124, it's 1 to 4. Talk about union and its territories. Second part talk about citizenship, 5 to 11. Third part talk about fundamental rights, which is taken from USA, and fundamental duties, which is taken from USSR, fundamental duties, and directive principles, which is taken from Irish constitution. So fundamental rights is from article 12 to 35, DPSP from 36 to 51, and 51 a talk about fundamental duties, which is in origin, in a starting it is 10, but right now it's 11. So five about union 51 to 151. Then six parts talk about the states, which is 152 to 237. And part 7, the Seventh Amendment Act repealed. यह जो था ना, पार्ट 7 जो था, तो सेवेंथ अमेंडमेंट के तहत जो है ना, इसको हटा दिया गया। ठीक है। Part 8 talk about the union territories, which is from 293 to 242. 293 to 242. Then Panchayat article 243, you can see here, 243 to 2 243 ओ तक दिया गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाइन्थ पार्ट का ए भाग जो है ना, उसमें आर्टिकल 243 पी टू 243 जेड जी तक दिया गया है। सो IX-B जो है ना, पार्ट IX का जो B है, ये A था जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था। पार्ट IX का B जो है वो, और ये भी याद रखना है कि इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि आपका नौमा जो है ना, पंचायत, जैसे पार्ट 9 में दिया गया है पंचायत से, बट 11th स्केड्यूल में जो है सो आपका दिया गया है ग्राम पंचायत, और 12 में दिया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो शेड्यूल और पार्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आर्टिकल 244 टू 244 ए आपका पार्ट एक्स में दिया गया स्केड्यूल ट्राइब। फिर पार्ट
11 जो है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 245 टू 263। पार्ट 12 जो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स 264 टू 300 ए। और 300 ए जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टीज जो था, 7th फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 which is repealed and it is now legal what I can say, ये कानूनी अधिकार है, दिस इज लीगल राइट्स राइट नाउ, बट it was in the fundamental rights also included, but it is repealed. Then trade, commerce and intercourse within the territory of India, Article 301 to 307, Part 13. Then 14 part talk about the service under the Union State, Article 308 to 323. 323। देन पार्ट 48 ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है आपका, आर्टिकल 323A टू 323B। फिर इलेक्शन के बारे में बताता है 15वां आर्टिकल 324 टू 329A। फिर 16th बताता है आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 टू 342। देन XVII यानी कि 17th आपका बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज को, आर्टिकल 343 टू 351। देन आपका 18th आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविज़न को बताता है 342 52 टू 360, जिसमें 352 है आपका नेशनल इमरजेंसी हो गया जो 3 टाइम्स इम्प्लीमेंटेड हुआ था। और उसके बाद आपका प्रेसिडेंशियल रूल जो कि अनगिनत बार लगाया गया है 356। और फिर 360 जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। स्पेशल ये हो गया आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। मिसलेनियस आपका आ जाएगा आपका 19th में आर्टिकल 361 टू 367। फिर आर्टिकल 368 जो आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स 369 टू 392। और फिर 22nd जो बताता है आपका शॉर्ट द कमेंसमेंट अथॉरिटीज टेक्स इन द हिंदी रिपीट्स, आर्टिकल 393 टू 395। Description of the articles of Indian Constitution. Below we have described the articles of the Indian Constitution. So now we are going to just see what is the articles, important articles which we will discuss. First article, territory, name and territory of the union, the admission of the establishment of new state, कोई भी नया स्टेट फॉर्म होगा उस आर्टिकल 2 के तहत। और थर्ड आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, उसका नेम सब जो डिसाइड करेगा वो आर्टिकल 3। आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 बताता है हम लोगों को। देन 6 राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। 10th आपको राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कंटिन्यूएंस राइट ऑफ द सिटीजन्स, पार्लियामेंट टू रेगुलेट्स राइट ऑफ द बाय लॉ। 11th आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि 12 और 13 जो है ना, ये हम लोग बेसिकली लॉट्स ऑफ पर्सन डोंट हैव आइडिया। सो 12 आर्टिकल जो है डिफिनीशन ऑफ द स्टेट बताता है, और 13th जो है आपका इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को शो करता है। आर्टिकल अब हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि पहले बेसिकली 7 था, लेकिन राइट नाउ इट्स 6 बिकॉज 7th जो फंडामेंटल राइट्स है जो था राइट टू प्रॉपर्टी विच इज एबॉलिश्ड, ठीक है। इट इज़ नाउ लीगल राइट्स।
14th article talk about equality before law. 15 provision of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. 16th equality of the opportunity in matters of public employment. 7th abolition of untouchability और 18th abolition of titles. Then right to freedom, जिसमें फर्स्ट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर में ये इतना आर्टिकल है 14 से 18 तक। और राइट टू फ्रीडम जो है इसमें आपका इन 19 to 22 है, जिसमें गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। 19 जो आर्टिकल है जिसके अंदर उस राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ए में कहा गया है पहले बोल सकते हैं, फिर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। क्या कह रहा है कि आपको बिना हथियार के रहना है, जिसमें कि आपका सिख को जो है स्पेशल राइट्स प्रोवाइडेड किया है, जो कि वो कृपान वो रख सकता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ठीक है। उसके बाद डी में आपका फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रो आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद ई में आपका है फ्रीडम टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओमिटेड। एफ में है ओमिटेड। जी में है आपका फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस, ठीक है। 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। 22 में है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23-24 में है, जिसमें कि प्रोहिबिट है ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फिर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 फैक्ट्रीज एंड माइंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25, 26 इसमें 25 आर्टिकल में आपका है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में है आपका 26 में है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम एज अ पे टैक्सेस एंड प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29 और 30 में दिया गया है, जिसमें कि आप प्रोटेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन, जिसके तहत आप मदरसा सब देखते हैं ओपन जो करता है वो इसी के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि देख सकते हैं आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज जो है, जिसे कि सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें के तहत जो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई इन्फोर्स्ड हुआ है तो आप जो है सो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। और आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में हम स्पेशल जो है आर्टिकल उसको ही बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, जिसमें अभी करेंट में न्यूज़ में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपका एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी 37 में है, डिफिनीशन 36 में है। और 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। आपका ड्यूटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 आर्टिकल्स में है। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल इम्पोर्टेंस। देखिए आर्टिकल 49 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मोनूमेंट्स होगा, तो वी हैव द ड्यूटीज ऑल्सो, what I can say, because DPSP is not we cannot raise appeal if
इसका पालन अगर नहीं होगा देन वी कैन नॉट अपील इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकॉज इट्स नॉट अ लीगल. Okay, so basically it is like duties, so we have to do, right, basically. So ये हो गया फंडामेंटल. डीपीएसपी हम लोगों ने देख लिया. उसके बाद आपका हो गया 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 देयर वर 10 fundamental duties. Later with the 86th Amendment Act 2002 one more duty was added. 86th Amendment Act 2002 के through there is one more added after we have a total of 11 fundamental duties. Okay, so then we are going to the next one which is 52. Talk about the 52 to 151 which is about union. So 52 about President of India, then executive power of the union, then election of the president in 54. 61 procedure for the impeachment. ये बहुत important हो जाता है. impeachment of the president प्रोसीजर जिसमें कि महाभियोग लाया जाता है राज्यसभा लोकसभा में. तो उसके कारण द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट. द वाइस प्रेसिडेंट हम लोग क्या जानते हैं, राज्यसभा का सभापति है ना, तो यही बता रहा है. द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 66 आर्टिकल. फिर 672 में पैर्डनिंग पावर्स. अब देखिए 72 के थ्रू जो है जो क्षमादान की शक्ति है वो प्रेसिडेंट में निहित है, तो उसी के बारे में है. 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स एंड एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. फिर अटॉर्नी जनरल 76 जो कि अभी कौन है, आर वेंकटरमनी है. कौन है, आर वेंकटरमनी जी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 79 देखो सरल 79 संसद से है पार्लियामेंट, रॉ से राज्यसभा 80 और 81 आर्टिकल लोकसभा से है. सरल से याद कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स है. तो आप देख सकते हैं 79 पार्लियामेंट, फिर राज्यसभा हो गया, फिर लोकसभा हो गया. ठीक, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कितना होगा वो 83 आर्टिकल में है. द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल 93. अब देखो स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है ना. अभी जो सेशन अभी जो मीटिंग बुलाया गया था जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, स्टेट्स आर्टिकल 152 टू 237 है. इसमें हम और भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं. देखिए 124 विच इज टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज ऑफ जज 125, फिर अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस 126. फिर आप सभी देख सकते हैं इसमें द सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 130, स्पेशल लीव्स ऑफ अपील इसमें सब दिया हुआ है. 148 आर्टिकल अभी कौन है, अभी जीसी मुर्मू जी जो हैं वो कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सो बेसिकली 148 आर्टिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, 149 आर्टिकल्स. फिर 152 आर्टिकल्स टू 237 गवर्नर ऑफ स्टेट 153. फिर एग्जीक्यूटिंग पावर, फिर पैटर्निंग पावर्स ऑफ द गवर्नर 161 में. हम लोग सेंटर में देखे थे कौन से में है, 72 में है. 72 में है पैटर्निंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और यहाँ पे 161 में है पैटर्निंग पावर ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि -11 अगर कर दें तो आ जाएगा. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 165. गवर्नर प्रोमोले ऑर्डिनेंस देखो 213 के तहत द पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस. हाई कोर्ट फॉर द स्टेट 214 और हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट रिकॉर्ड 215 226. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स. अब देखो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एससी जो है रिट्स जारी कर सकता है, और 226 के तहत
कोर्ट्स, हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज 233, फिर कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट 235। 8 पार्ट में आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242 आपका यूनियन टेरिटरीज से हो गया। फिर 9 में पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ए में आपका ग्राम सभा का है जिक्र, 243 बी में है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये याद रखना है। 9 ए में म्यूनसिपल पार्टीज हो गया आपका आर्टिकल P2 ZG हो गया, 243 P2 ZG हो गया। स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 पार्ट 10। पार्ट 11 में सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, 245 टू 263। फिर 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट सूट्स एंड आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300A। फिर 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 267 फाइनेंस कमीशन 280 और 300 राइट टू प्रॉपर्टी। ट्रेड कॉमर्स ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 301 फ्रीडम ट्रेड कॉमर्स इन इंटरकॉस, 302 द पावर पार्लियामेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकॉस। पार्ट 14 सर्विस अंडर द सेंटर एंड स्टेट आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323। देखो इसमें 312 जो है ना आपका इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है जिसमें कि IAS IPS सब जो आता है ये अंडर 312 आर्टिकल में आता है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। फिर 320 में जो है फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें फंक्शन दिया गया है, इसमें कार्य दिया गया है। 14A में दिया ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A टू 323B। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। फिफ्थ इलेक्शन आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329, 24 टू 329 आपका सुपरिंटेंडेंट 24 में है। फिर नो पर्सन टू बी एस्टेब्लिश फॉर इंक्लूजन दिया गया है। उसके बाद 26 ये सब उतना नहीं, इसमें देखो 326 जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आर्टिकल पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी GTC आर्टिकल 338 टू 342। 338 में नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और 340 में अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 टू 351 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज 343 जो है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। फिर 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है। फिर 348 में लैंग्वेज टू बी यूज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट। 348 आर्टिकल 351 में आपका डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के बारे में है। 351 में 18th में इमरजेंसी है, जिसमें कि आपका नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी 352, 356, 360। मिसलेनियस में आपका आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स 361 आर्टिकल के थ्रू है। 20 पार्ट में आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है। तो आपका 368 पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। 21st पार्ट स्पेशल ट्रांसलेशन एंड ट्रांजिशनल एंड टेम्पोररी प्रोविजन आर्टिकल 369 टू 392। 370 टेम्पोररी प्रोविजन ऑफ द
of the erstwhile state of the Jammu and Kashmir, जो 370 है, जो कि अब नाउ एबॉलिस्ड। 371A और 371G स्पेशल प्रोविजन फॉर द नागालैंड और कर्नाटका रीजन। पार्ट सेकेंड 22nd शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टू टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स आर्टिकल 392 टू आर्टिकल 395। आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल of the constitution may be called the Constitution of India. Scheduled and important article of the Indian Constitution. The important articles of the Indian Constitution are as follows. अब हम फर्स्ट शेड्यूल में 1 to 4 आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। अभी हम खटाखट से स्केड्यूल को भी देख लें। सेकेंड के अंदर में आपका दिया गया है आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। थर्ड में दिया गया है आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। फोर्थ में आपका दिया गया आर्टिकल 4 to 80 एंड आर्टिकल 84 एंड 80। फिफ्थ में दिया गया 244। अब देखो हम इसको भी याद करने का तरीका जो इसमें जो है सो TEARS ऑफ OLD ओल्ड PM। 11वां जो है आपका पंचायत राज से है, M से हो गया आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि 12वां है। और 8 ईयर्स ऑफ ओल्ड PM जो है ना, इसके थ्रू मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा शॉर्ट में ही, जो आपका 20 से 30 सेकेंड में कवर कर लेगा और शेड्यूल पूरा कवर हो जाएगा। अभी मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 12th जो है आपका 243W में है। 11th शेड्यूल टॉक अबाउट 243G। 10th शेड्यूल टॉक अबाउट 102 टू आर्टिकल 191। 102 एंड आर्टिकल 191 इन 10th शेड्यूल। 9th में आपका वो आर्टिकल 321B और 8th में आपका आर्टिकल 344 टू 351। 7th में आपका आर्टिकल 243। 4th शेड्यूल में आपका 4 एंड आर्टिकल 80 बता दिया था। 5th में शेड्यूल में आपका 244 आर्टिकल। 6th शेड्यूल में आपका जो है 244 and 275. So thank you so much guys for your valuable time, and surely I will come up with the next important class. So thank you so much guys. See you later. Bye bye. Love you all.